everyone, and welcome to the third episode of Placement Talk series organized by CT ISM Student Chapter. I'm delighted to have you all here, and I'm super excited about the conversations that we will be having in today's session. As a guest of honor, we have our amazing seniors with us here. First of all, I would like to congratulate them on behalf of CT ISM Student Chapter for getting placed in such a prestigious company. Getting a chance to talk with all these people is such an honor for me, and I know it will help all the aspirants to achieve their dream jobs in their dream company like Mekon. So, I am Umang Tulsan, your host for today, and I would like to invite our co-host for today, Aisha Garwal. Welcome aboard, Aisha. Thank you, Umang, for the wonderful start. I am Aisha, and it's really an honor to be here and gain some lifelong learnings. So, first of all, I would like to congratulate all of the seniors that we have today who are successfully placed in Mekon India. Talking about Mekon Limited, also known as Metallurgical and Engineering Consultants India Limited, is a government expertise. It is under the ownership of Ministry of Steel, Government of India, and it began in 1959. So, without wasting much of our time, let's get on with the introduction. So, we have Kshitiz Goyal sir and Kesab Gupta sir, Charan Verma sir, Subham Agrawal sir, and Samit Tudu sir with us today. So moving on the limelight of the session, the questionnaire. So the first question we have is about the company. So while choosing the company, we always look for the factors like job security and all this. So I would like to know what were the major attractions for you to choose the Mekon India? Well, it's not like a choice to us. We are there. We are, in this session, as you all know, that very few companies are left. So the Mekon comes, we all are like applied to it. And as the further in initial phase, Mekon come first time to IITISM. We don't know that much about the company, what's the work, what is going to do with the engineers and so on. So it's a new experience to us. So finally, when we reach there at Mekon, now then we learn about the company and the further goes on. So it's not like just choice at this time. का हालात देखते हुए कोरोना की वजह से कंपनियां तो आ नहीं रही हैं, प्लस जो कंपनियां आती हैं वो भी उनको मतलब लोगों को निकाल रही हैं। उसको देखते हुए सबसे अच्छी चॉइस होगी एक गवर्नमेंट जॉब। सो एक ये बहुत बड़ा मेजर फैक्टर था कि इसीलिए हमने गवर्नमेंट जॉब प्रेफर करी, क्योंकि बिकॉज ऑफ दैट रिसेशन टाइम्स। दूसरी कि ये PSU है, अच्छा खासा काम करती है, बहुत सारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट हैं जो कि लंबे टाइम तक चल सकते हैं, कैरियर ग्रोथ भी अच्छी है इसमें, तो चूज कर सकते थे इसके लिए। बट ये नहीं है कि बहुत अच्छा है इसलिए तुम लोग गए, कोई ऑप्शन नहीं था इसलिए जाना पड़ता है वहाँ पे। Thank you for the amazing answer, sir. So now we know the factors to consider while applying for a company and what role does it play. Now we know that company requires a specific skill set which they look for in their employees, and we are also encouraged to learn communication skills and other soft skills. I'd like to ask you that what were the specific skills that were required for Mekon? Mekon के लिए तो कोर वो जो था वही उन्होंने पूछा था, और कुछ अलग से उनको कोडिंग या फिर ऐसे आपका जो CV वगैरह में जो स्किल सेट चाहिए होते हैं वो नहीं था। उन्होंने सिर्फ कोर टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे थे और उसी की वजह से सिलेक्शन हुआ था। रेस्ट GPA और कम्युनिकेशन स्किल्स वही सब, बाकी ऐसे कुछ स्पेसिफिक वो नहीं था कि आपको कोडिंग आनी चाहिए या फिर C++ या फिर कुछ और जो भी पेट्रोल रिलेटेड कोर्स जो बंदे करते हैं, ऐसा कुछ खास रिक्वायरमेंट नहीं थी। हाँ, अगर वो आपके CV में हो तो वो ऐड करता है ये डेफिनेटली। Yeah, basically our role is pipeline engineer, as you know. So they want to ask some pipeline questions, but we haven't studied like that. So they basically ask like question related to our general course production and the things, and most importantly, they ask question related to our training and in the training and also in what you do in IRS or IOGPT wherever you went. These are two things they basically more focus on. IOGPT, IRS wherever you go, or your field training, what you see, what the work you done, what project you have acquired, and what's the things you have done. Or in CV they don't ask much. Means जैसे इसने कहा ना, क्षितिज ने कहा कि IRS और IOGPT से रिलेटेड पूछा, वो एकदम करेक्ट है।
प्लस जो ट्रेनिंग हमारी सेकेंड ईयर में हुई थी जो कि बेसिकली फोकस करती थी जीजीएस सीटीएफ वगैरह उस पर, क्योंकि मिकॉन के प्रोजेक्ट्स होते हैं बनाना जीजीएस सीटीएफ वगैरह, तो वो स्पेसिफिकली मतलब इंटरेस्टेड थे जानने में कि कितना पता है हमें जीजीएस सीटीएफ के बारे में। प्लस एक स्किल ये कॉन्फिडेंस इस मैटर करता है, अच्छा था मेरे लिए। डेफिनेटली वही कॉन्फिडेंस बहुत मैटर कर रहा था 100%, मतलब कोई और चांस ही ट्रेनिंग नहीं। और इंटर्नशिप जो की है, वो जो भी किया है, कम किया हो या ज्यादा किया, वो मैटर नहीं करता, जितना किया उतना कॉन्फिडेंस है और उसको आप एक्सप्लेन confidence कर जो पा भी रहे हो। मतलब कुछ लोगों के साथ होता है कि करके आ जाते हैं पर वो उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि वहां पे कि क्या किया या वो क्या भी सीखा, है। तो वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट कर जाता है कि आप कैसे क्या एक्सप्लेन करते हैं वहां पर। मिकॉन में Confidence जीपी तो- भी बहुत बड़ा फैक्टर था। अगर जीपी आपका अच्छा है तो बहुत अच्छी है, जीपी काफी बड़ा फैक्टर था। लेकिन उसमें कैटेगरी भी था कि इसमें कितनी कितनी सीट हैं। एसटी के लिए कोई 0 सीट थी तो उनका तो कोई मतलब ही नहीं था, चाहे कितना भी अच्छा हो जाए। और दूसरा, तुम्हें सब्जेक्ट की अपनी कोर की नॉलेज हो, बेसिक नॉलेज। ड्रिलिंग में है तो डार्सी लॉ क्या है, प्रोडक्शन में बेल लॉगिंग है, ये बिल्कुल बेसिक। डेंसिटी लॉग क्या होता है, न्यूटन लॉग क्या है। तुमने कहीं इंटर्नशिप की है, आईडीटी गए हो या फिर आईजीपीडी, तो वहाँ क्या क्या किया है। और तुम ज्यादातर तुम जो बताओगे उसी में क्वेश्चन पूछ रहे थे। बेसिकली हरा भाई बहुत बेसिक क्वेश्चन थे, यही मैटर करता है। बाकी तुम्हारा अगर जीपी अच्छा है तो फिर कोई बहुत बढ़िया हो जाएगा। पीएसयू में सारे जीपी कंसिडर करते हैं बहुत ज्यादा। और ऐसा मत सोचना कि जीपे कंसिडर करते हैं तो जिनका जीपे नहीं है तो उनका खत्म ही हो गया। हाँ, ऐसा भी मतलब नहीं है, उसके बाद है बट कि वो एक तुम्हारे लिए एक्स फैक्टर हो जाएगा, बट ये नहीं हाँ, खत्म मतलब नहीं एक होगा बाद में। पॉजिटिव पॉइंट है आपका जीपे हाँ। अच्छा है, पर नहीं है तो अगर आप इंटरव्यू अच्छा देते हैं तो आप पे बहुत डिपेंड करता है। सेम इज हाँ। फॉर ओएनजीसी एंड सेम इज फॉर मैकेन। अगर PSU जीपीए जितने नहीं है भी तो हैं, आप इंटरव्यू में जितना अच्छा दे पाए इंटरव्यू उतना अच्छा, जितना आप सामने वाले को इम्प्रेस करते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे पीएसयू फोकस करते हैं बेसिक नॉलेज पे, उनको ज्यादा डीप नहीं जाता कोई भी। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं और बस आपको कॉन्फिडेंट रहना है, सही से जवाब दे देना है उनको। Thank you, sir. That was really insightful. We got to know various factors like confidence plays a very important role, as well as the amount of training and internships we have. So, moving forward to the next question. So, we know that everyone has his or her own placement strategy, preparation strategy that we like to do to achieve our goals. So, my question is, what was your preparation strategy for the placement process? एज सच तो ज्यादा थी नहीं। बेसिकली हमने क्या कोर के बारे में पढ़ा, कोर बेसिक कोर नॉलेज होनी चाहिए आपको। प्लस जैसे ही उनका जो इंटरव्यू था वो रांची में था, रांची में इसलिए और प्लस ऑनलाइन इंटरव्यू नहीं था, वो एक बड़ा फैक्टर मैं कहूँगा कि ऑनलाइन इंटरव्यू नहीं था, फेस टू फेस इंटरव्यू था। उससे क्या वो एक फीलिंग होती है, वो इंप्रेशन का काफी फर्क हाँ पड़ता है। इम्प्रेशन काफी फर्क पड़ जाता है कि आप उनके फेस टू फेस बैठे हो तो इम्प्रेशन काफी मैटर करता है। प्रिपरेशन ये था कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ वगैरह, ये सब थोड़ा मतलब अच्छे से पता होना चाहिए स्पेसिफिक वे में कि आप क्या बोलने जा रहे हैं, मतलब आपको सही से थोड़ा एक रिप्रेजेंट कर पाए अपन को। और एक और चीज इंपॉर्टेंट जो मैटर करती है कि आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता ना तो यू जस्ट से लाइक सॉरी आई एम नॉट अवेयर अबाउट दैट और आई डोंट नो लाइक दिस। मतलब बनाने की कोशिश नहीं करने की आंसर की नहीं आता है तब भी अपने मन से बोले जा रहे हैं, तो वो एक्चुअली में सामने वाले को तो पता है कि वो चीज सही है क्या गलत है, तुम कब बना रहे हो, तो वो तुम्हारे लिए एक नेगेटिव फैक्टर हो जाता है। तो तुम उनके पास कर सकते हो कि सर मैंने ऐसा सोचा है, ये है, तो वो सामने से ऐड कर देते हैं। और एकदम ही तुम ब्लैंक हो तब फिर कह दो कि सर मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर तुमने सच्ची में नहीं पढ़ा है, कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने नहीं पढ़ा, डाउन स्ट्रीम के थे, तो डायरेक्टली बोल दो कि सर हमारे सिलेबस में नहीं था, तो भी वो नेक्स्ट क्वेश्चन। उन्होंने भी पाइपलाइन के बारे में पूछा था, जो उन्होंने पहले पूछ दिया था कि तुझे आता नहीं है, मुझे पता है, बस मैं तेरे को जानना चाहता हूँ कि तू किस डायरेक्शन में सोच रहा है, वो इम्पोर्टेंट है, आंसर जरूरी नहीं है, किस डायरेक्शन इम्पोर्टेंट है। पीएसयू में जाओ तो सबसे पहले कंपनी के बारे में पता कर लो, वो क्या काम करती है, कब। मैंने जब तैयारी किया था उस समय मैंने जो सीवी में लिखा था बस उसको ध्यान से पढ़ना है, और मतलब उससे क्या क्या चीज तुम रिलेट कर सकते हैं, जो पैनल में बैठे हुए रहते हैं उनको तुम मतलब उस डायरेक्शन में लेके जाओ कि जिधर तुम स्ट्रॉन्ग जोन है तुम्हारा, तो उस डायरेक्शन में लेके जाने की कोशिश करो। जो भी मतलब रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे उससे, तो तुम उस डायरेक्शन में लेके जाओ उन लोगों की, मतलब जो तुमको आता हो, तो ये भी हेल्प करता है। पीएसयू के लिए रिवीजन बहुत जरूरी है।
छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बस उनको पढ़ जाओ हो जाता है, कॉन्फिडेंट रहता है। Dear seniors, so now it was very informative. So now we know that we should have a thorough information about the company which we will be interviewing, and next we should also inculcate the habit of being to the point and being constant in the interview. So as we all know that the group discussion round is often scheduled before the interview round, and it acts as a screening round just before the interview, and many people face difficulties in it. So I would like to ask, how did you prepare for your group discussion round and what was your topic? डिस्कशन नहीं हुआ हमारा। पीएसयू में ग्रुप डिस्कशन नहीं होते हैं ज्यादातर में, सीधे इंटरव्यू होता है, पहले पीवी interview शॉर्टलिस्ट होता है। कर लेते हैं, उसके बाद वो इंटरव्यू करते हैं, ज्यादातर में यही होता है। बहुत रेयर केस में किसी पीएसयू में ग्रुप डिस्कशन होती है। आगे अगर करना हो तो तुम अपना स्ट्रेटेजी बना लिया, केन के लिए किया होगा कुछ लोगों ने, एक्जॉन के लिए करते हैं, तो वहां से सीख सकते हो या दोस्तों के साथ कर सकते हो। पीएसयू के लिए बाहर जरूरी नहीं है जीडी, बट बाकी जो चीजें हैं, इंट्रोडक्शन तो याद ही कर लो, इंट्रोडक्शन है, बाकी छोटी मोटी चीजें हैं वो कर लो। बाकी जीडी हमारा नहीं होता तो हम लोग सीधे पीआई होता फेस टू फेस। अगर जीडी कभी भी हो भी तो किसी को आराम से करो कि बात काटनी नहीं होती, अपनी बात रखो। अगर कोई नहीं बोल रहा तो उसको बोलने का पूरा चांसेस दो, उसमें ये नहीं बहस नहीं करनी है तुम्हें जीडी में। पहले ही बात ये कम्युनिकेट करना है, एक दूसरे की बात समझनी है, काटनी नहीं है कि तुम्हें लगता है कि तुम ज्यादा बोल लोगे तो तुम्हारा ज्यादा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। तुम कितने सहनशील हो, कितना दूसरे को सुन पा रहे हो, वो ज्यादा मैटर करता है अगर किसी और कंपनी में हो तो। In general, the PSU doesn't conduct any type of GD. The two PSU have visited, like if OIL will come, that will also not conduct any type of GD. They directly conduct interview of each and every student. In ONJC, if the student is eligible, he's gonna sit for interview. Same as for Macon. If you are satisfying their GPA criteria, you're gonna sit for their interview. Okay, no, nothing is stopping from you to sitting in the interview. So thank you, sir, for information regarding group discussion and how it is a way to represent our opinions. So moving forward to the next question. So we all face challenges during recruitment process, and it's just a journey of facing challenges and learning from them. So my question is, what were the challenges you faced during your recruitment process? First of all, तो traveling in corona time is a challenge to me. The train tickets were merely available. बहुत मुश्किल से ट्रेन टिकट मिली थी मुझे ट्रैवलिंग टू रांची। आफ्टर दैट प्लस मुझे एक्चुअली मैं धनबाद से हमारा प्लान था कि सामान भी लेके आना, तो सामान ले जाना भी एक तरह से चैलेंज था। बेसिकली मेंटल चैलेंज ज्यादा होता है। क्या होता है कि सबसे पहले आप देखते हो कि कोई भी कंपनी आ रही है, आपका पहली कंपनी है उसमें नहीं होता है या फिर दूसरी कंपनी में नहीं होता है, तो यू आर स्टार्ट फीलिंग डिप्रेस एंड समथिंग लाइक दैट। तो वो चीजें नहीं करनी होती है। मतलब अपने आप को जितना पॉजिटिव रख सकते हो नई होप के साथ, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने जहाँ होप खो दी कि आपका नहीं होगा या फिर आप सोच के बैठे हैं, भले कितना भी कम जीपी हो या फिर कुछ भी हो, अगर आप उस चीज को सोच के बैठे हैं कि लाइक मेरा नहीं होने वाला है या फिर मैं नहीं कर पाऊंगा, तो वहां पे बहुत दिक्कत आ जाता है। वो चीज कैसे भी नहीं करने की, लाइक नहीं होगा। तो गेट देने से हेल्प बहुत हुई, क्योंकि उससे हमें कोड की नॉलेज बढ़ी हमारी कि कोड जैसे मैंने पेट्रोगेट जो था उसमें क्या कहते हैं मैंने यूज़ करा, तो कोड की नॉलेज मेरी बढ़ी, उससे मेरे को बहुत हेल्प हुई इंटरव्यू में भी। प्लस मेरा जो एक तरह से क्या है दिसंबर जनवरी फरवरी वाला फेज होता है, जो कि बहुत सबसे ज़्यादा डिप्रेसिंग होता है, जो कहते हैं कि जिसमें सारी कंपनियां आती हैं, हाँ, कुछ होता है और उसमें होता नहीं है, तो वो निकालना, वो 3 महीने निकालना बहुत मुश्किल होते हैं। उस वाले फेज में गेट जैसे कुछ ना कुछ जरूरी है कि गेट वगैरह कर लो, जिससे मैंने गेट लिया था, जिससे मेरी कोर नॉलेज बढ़ी, प्लस मेरे को इंटरव्यू में हेल्प हुई और मेरे 3 महीने निकल गए। और जरूरी नहीं कि तुम लोग गेट ही करो, लाइक तुम्हारे मतलब पास कोडिंग का ऑप्शन है, कुछ ना कोडिंग का। ये नहीं है कि एक बस बैठ जाओ लेकिन हाँ नहीं हुआ कुछ नहीं होता, बैठना नहीं है, बस ट्राई करते रहो। बाकी मिकॉन का किसी को पता ही नहीं था, ना कोई सीनियर ना कोई
कुछ कोई कांटेक्ट नहीं तो कुछ पता नहीं कि क्या है इंटरव्यू होगा, क्या क्या होगा, हमें कुछ नहीं पता। जो प्रीवियस ईयर के जो ओएनजीसी के बेस पे तैयारी की कि ओएनजीसी क्या पूछती है, किस तरीके से पूछती है और क्या क्या पूछ सकते हैं ये लोग, पाइपलाइन का थोड़ा बहुत पढ़ा था, यही है। बाकी अगर किसी कंपनी में तुम्हारा नहीं होता तो पेशेंस रखो, खुद पे कॉन्फिडेंस रखो, हो जाता है। अगर तुम हिम्मत हार जाओगे तो फिर नहीं होगा। कॉन्फिडेंस रखो खुद पे, कहीं ना कहीं हो ही जाएगा तुम्हारा, अगर सही है तुम काम कर रहे हो तो। मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है क्षितिज, ठीक है। स्टे पॉजिटिव। अब गेट का मैं भी प्रिपेयर कर रहा था, ऑप्शन कुछ था ही नहीं, मतलब जीपीए भी वैसे मेरा उतना अच्छा नहीं था, तो गेट का मैं भी प्रिपेयर कर रहा था। तो उससे क्या हुआ थी कि मतलब जितना भी कोर सब्जेक्ट है, ड्रिलिंग हो गया, प्रोडक्शन, रिजर्वायर, ये सबसे मतलब कनेक्टेड रहा था। एक तो ऑनलाइन क्लासेस चल रहा था तो उतना ध्यान नहीं दे रहे थे, उतना मतलब रेगुलर जो सेमेस्टर क्लास चल रहा था उसमें। तो गेट का प्रिपरेशन अच्छा से चल रहा था, तो कोर सब्जेक्ट से कनेक्टेड था। तो बाकी इंटरव्यू भी जस्ट मतलब उसी वो में उतना रिवीजन नहीं करना था। तो उस इंटरवल में मतलब ये बहुत ज्यादा, जब तक मैकॉन का फॉर्म नहीं आ गया कि लेने वाली है उससे पहले, और गेट का मतलब ये जनवरी से फरवरी के बीच का इंटरवल, वो बहुत ज्यादा परेशान था क्योंकि बैच में से मुश्किल से 30 बच्चे भी प्लेस नहीं हुए थे सही से, और हालत ये थी बहुत ज्यादा खराब। तो फिर उस इंटरवल में अपने आप को पॉजिटिव जिसने रख लिया वो निकल गया, और जो नहीं रख पाया उसको थोड़ी प्रॉब्लम हुई। इसी जगह बहुत सारे लोगों ने गेट के। So thank you, senior. That was really insightful, and we got to know that the challenges we face, if we keep a positive attitude and continue working hard, then we can obviously sail our boat through that. So now moving on with the next question, we all know that ONGC organizes a training program in midsummer for the students to have an oil field experience. We would like to know how had that impacted you during the recruitment process? To be honest, real knowledge of petroleum engineering comes from the first visit of the ONGC plant. You have no idea about how the packers is gonna look like. When you see these objects, you gonna amaze, like, wow, what is this? You gonna see rig in working, or if you gonna see a real well, you say, what, this is a well? Something like that. When you gonna see a logging truck, oh my god, this is logging truck, this is how it's gonna work. These the data means real life experience, how the work is done in the industry, you gonna get from there. What the petroleum engineers do, what their tasks, what are the things we are monitoring, what we gonna do in future, all these things. What are the things that you gonna do in industry, you will gonna know in the trading. तो मतलब समझ लो क्या कहते हैं ना कि थ्योरी होती है, थ्योरेटिकल होता है, एक प्रैक्टिकल होता है। थ्योरी नॉलेज काफी नहीं होती, प्रैक्टिकल नॉलेज भी उतनी इंपॉर्टेंट होती है कि वो ट्रेनिंग तुम्हारी प्रैक्टिकल नॉलेज है पेट्रोलियम इंजीनियर के लिए। तो प्रैक्टिकल तुम्हें पता चलेगा कि ऑफिस में वर्क कैसे होता है, तुम्हें ऑफिस एनवायरनमेंट के बारे में पता चलेगा, ऑफिस में कैसे बिहेव करते हैं, सब कुछ पता चलेगा तुम्हें कि होता क्या। जैसे हमें ओएनजीसी में गए थे तो बिल्कुल एनवायरनमेंट अलग था वहाँ पे, ऑफिस एनवायरनमेंट एकदम कॉलेज में, हम कॉलेज वाले स्टूडेंट हैं, हम तो पता ही नहीं कैसे वो करते हैं। तो वहाँ पे जाके पता चलता है, तुम मेंटर के अंडर काम करते हो तो बहुत अलग होता है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है। जैसे क्षितिज ने बोला फील्ड एक्सपीरियंस में जाकर पता चला कि पैकर कैसा दिखता है, वेल हेड कैसा होता है, क्रिसमस ट्री कैसा होता है, वो देख के तुम्हें अच्छा लगेगा कि हाँ पेट्रोलियम इंजीनियर हाँ कुछ तो है। जब वहाँ पता चलेगा कि हाँ यहाँ से तुम्हें दिखेगा कि ऑयल और वाटर कैसा दिखता है, वहाँ पे सब कुछ पता चलेगा, तो तुम्हें पता चलेगा कि हाँ। Do you know the mud pump is the size of your room or bigger than that? Single mud pump, 4 mud pumps are used generally in single well. बड़े इक्विपमेंट्स देखोगे ना जितने दिखेंगे भी नहीं, इतने बड़े बहुत बड़े हम ड्रिलिंग रिग जो हमने देखा, ड्रिलिंग EV 2002 I think, हाँ मॉडर्न रिग था वो एनजीसी का। कैसे दिखते हैं ड्रिलिंग पैप, एचडी कैसे दिखता है, ये सब चीजें वहां जाओगे तब पता चलेंगी ये ऐसा होता है। ब्लॉड प्रिवेंटर ऐसा दिखता है, जब ड्रिलिंग कटिंग कैसे ऊपर आती हैं, ड्रिलिंग मड का पूरा प्रोसेस कैसे होता है, कैसे अंदर जाता है, ये सारी चीज जब वहां जाओगे तभी पता चलेगा। वो तुम पढ़ लोगे किताबों में, वो फील नहीं आएगी। असली जो फील है वो प्रोजेक्ट वहां देख के वहां समझ के ही आएगी। So now we know that training helps us integrate the practical knowledge and the theoretical knowledge, and it helps us in getting a gist and a good feel of the industry. So moving on, when you first face a problem, how to select our specific subject for the interview round, like how to prioritize a particular subject for the interview. So
can you please tell us how to prioritize that subject and make that subject our priority for the interview round? See, our colleges basically have reputation in reservoir engineering. Basically, ISM is known for its reservoir engineering all over the place. If you're gonna see an engineer, basically it's for reservoir. And production and तो ये drilling भी ना engineer also from the ISM. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Production and drilling engineers are also from ISM, but generally companies come ISM for the reservoir engineer. So the companies like ONGC and Kane, they basically focus on reservoir and production. So drilling is not their most priority, but one or their two, they will have one or two posted for drilling engineering. So from there you will get an idea that you have to focus firstly on reservoir, secondly on production. Or drilling, because the reservoir is very vast. Reservoir engineering, if you're gonna study, you have the notes of Tarak Ahmed sir, T. Kumar sir notes. The Tarak Ahmed's book is there. So you should learn from, you should study that book. Means either study T. Kumar sir notes or Tarak Ahmed book. You have the idea about if you have the idea about reservoir, wanna know about reservoir engineering, and is that you have to study these two. Basically, first is reservoir, second priority is production, according to me, and third is drilling. If somebody is good in drilling, they can prioritize it first. As like me, I want to do something in drilling and so I've prioritized the drilling. But in interview, it generally hardly matters what is your priority. They will gonna ask what they want. In ONGC, they filled a priority form. I filled drilling as my priority, but they ask all the questions related to reservoir. So it's not about that what you want. It's about that what company wants. So I'll advise you to prioritize reservoir first, second production, and drilling, because drilling syllabus is not that big. Because in interview they are not gonna ask you a formula, right? That the formula of casing design, something like that. They just gonna ask a simple what is overburden pressure, what is hydraulic pressure, something like that. What is MWD, something like that. They don't not gonna ask something very techy or formula of that. So if we remove formula from drilling is like nothing. If you gonna complete drilling in 2 to 10 days, hardly, if you're gonna study well. So first priority, I think, because most company want reservoir, so you have to prioritize reservoir, second production, and third drilling. And apart from that, you have subject like well testing analysis, EOR, and pipeline engineering, and like sir ने क्या पढ़ाया था? Offshore हो गया, CBM. Offshore हो गया, हाँ. If Acer come, they will ask for CBM. Reliance can ask for CBM. So have little bit idea about that. They are not gonna go too deep into that. Okay. हाँ, बेसिकली प्रिपरेशन मैंने करी थी, तो मेरे को सारे सब्जेक्ट तो पढ़ने ही थे. उससे मेरे को सारे सब्जेक्ट्स की बेसिक नॉलेज हो गई थी कि हाँ, मुझे पता है वेल टेस्टिंग में क्या होता है, मुझे पता है ऑफशोर टेक्नोलॉजी में क्या होता है. मेरे को थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए. तो क्या कहते हैं, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए. इन डेप्थ नॉलेज जैसे फॉर्मूला वगैरह तो कोई नहीं पूछता सच में. तुम्हें कंसेप्ट पता होना चाहिए, और तुम्हें प्रोफाइल पता होना चाहिए किस प्रोफाइल के लिए कंपनी आ रही है. अगर तुम्हें कि रिजर्वायर प्रोफाइल के लिए आ रही है, तो तुम्हें ऑब्वियसली रिजर्वायर ही पढ़ना है. तुम्हें अगर नहीं पता कुछ भी की प्रोफाइल के बारे में, तो तुम्हें मेन 3 सब्जेक्ट्स हैं, ड्रिलिंग, प्रोडक्शन और रिजर्वायर. इन तीनों का तुम्हें बेसिक अंडरस्टैंडिंग पूरी होनी चाहिए. Yeah, thank you for the answer, sir. We got to know a lot of things and a lot of factors about how we should prioritize our subject for the placement scenario. So moving on to the informal questions. So we know that club plays a very important role in our college life. It gives us thousands of memories and hundreds of life lessons. So my question is, if given a chance, what club would you open at IIT-IISM? तो क्लब तो क्या ही बोलूं मैं, क्लब तो ज्यादा काम तो आया नहीं था. मेरे को तो नहीं लगता किसी के उसमें भी क्लब कोई काम आया था. Definitely. I was part of an club. मुझे तो काफी, मुझे तो पोएट्री पढ़वाई थी भाई, 2-3 पोएट्री. वो तो तेरा मजा ले रहे थे.
मजाक कर रहा हूँ। बेसिकली हमारे यहाँ पे कोई वो नहीं है देखो। मेंटल हेल्थ के ऊपर ज्यादा कोई क्लब नहीं है। हाँ मेंटल हेल्थ अभी के ऊपर स्टार्ट जैसे किया था कोई मैं, कुछ प्रोग्राम हो रहा था, डायरेक्टर सर की प्रोग्राम तो पत्नी ठीक उसकी है। हेड थी। प्रोग्राम एक तरह से वो क्लब, व्हाट इज अ क्लब की क्लब एक वो होता है कि ग्रुप ऑफ पीपल हो गए कि हाँ उसमें कर रहे हैं, वही प्रोग्राम करवाते हैं, वही सब कुछ करवाते हैं, यही होता है क्लब। एक तरह से जैसे मेंटल हेल्थ होती है, जो मेंटल हेल्थ वगैरह पे एक क्लब बन सकता है कि वो if you have the passion to do something, you gonna do it with or without club. It's just basically a time pass or do something you like in a particular way. They provide you something like some instrument, some support is there, but if you have the passion to do something, either way you gonna do it. If you have club or not. If the Charan has the passion to write poetry, he is gonna write it. Either he is बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, person in Chenika Sangh gonna listen to him or not, he is gonna write it. If I have the passion to do in something like robotics or make something like that, I'm gonna do it. So it was really great to hear your thoughts about the club. So now moving on, we know that college has impacted our lives so much. Like it has reshaped us into a wholly different individual as a whole. We have learned so many lessons to live, lessons to adapt, lessons to give. So I would like to ask that how these 4 years have impacted your life. When you come out of 12th or after JEE preparation, you are like arrogant person, like I am the one, like everybody has it. They do not have match friends, means you do not have the exposure. What are the things around you? You have only studied for 2 years. You have no idea what are the things outside that world of study. You are like means I was arrogant. I don't know about that. Everybody knows that. Arrogant and arrogant, but in college sometimes you hit a stone. You learn from your mistakes. I have done lot of mistakes. Seriously, I have done lot of mistakes. These are the two they if you ask them, they're gonna count you hundreds of mistakes that I have done. Experience about the future life. If you have done in this stage of life, in future you definitely not gonna do that, and you learn from that. And the college help us to reshape ourselves very much. Means when I entered the college, I was a different human being, and that I am right now. Reshape ourselves very much. Means when I entered the college, I was a different human being, and that I am right now. Definitely. ये तो बेसिकली एक जब आदमी आता है तो कुछ और होता है, निकलता है तो कुछ और। यूनिवर्सल ट्रूथ है कि कॉलेज लाइफ चेंजेस यू इन अ वेरी डिफरेंट वे। मतलब बहुत ही जब 11 12 में तुम लोग होते हो तो ज्यादा टाइम नहीं मिलता, कॉलेज में आते हो। कह रहा था ना कि गलतियां करते हैं हम, तो बेसिकली 4 साल ही हमारे पास, 2.5 साल, मतलब कि तुम गलतियां करो, जितनी कर सकते हो करो, तुम सीखते हो पूरा। तुम कॉलेज में ही ऐसा होता है कि तुम गलतियां करो, तुम सीखो। आगे जाके पता नहीं मेरे को, अभी तक हम तो बस कॉलेज का बता रहे हैं। अभी तक ये सीखा है कि कॉलेज में जितनी गलतियां करनी है करो, छूट पूरी है तुम्हें। 12th तक हमारे को क्या है, 12th तक हम कुछ दुनिया तो कहाँ देखी होती है, 12th के बाद ही मतलब नया बच्चा आता है, 12th के बाद कॉलेज से पूरा दुनिया बहुत बड़ी है। 12th हमें जेई तक कुछ पता नहीं पता, सही में जेई तक हमें कुछ पता नहीं था। उसके बाद हमारी हॉबीज वगैरह बनती है कि हम हॉबीज वगैरह बनाते हैं कि हाँ, कि अलग हमारे को पता चलता है कि हमें क्या पसंद है क्या ना पसंद है। It was such a amazing opportunity to hear all your amazing experiences from your college. So moving forward, so we talked about mental health and all previously. So I would like to know what was the best strategies that helped you to handle your stress during your placement season. बस यही है कि आपको अपने आप को बिजी रखना है, और इससे ज्यादा तो कुछ कर भी नहीं सकते आप ज्यादातर, क्योंकि बाहर कहीं जा नहीं सकते, घूमने कुछ कर नहीं सकते, वेकेशन तो हम स्पेंड नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो बेसिकली आपको घर में बैठे अपने कमरे में बंद रह के आपको सब कुछ करना है, एक्सप्लोर करो, मतलब बिजी करो अपने आप को, वही है। Sir, we all know that coding, many people have a doubt that if coding impacts the placement process directly or indirectly. So we would like you to tell something about this. बहुत कम है, बहुत कोर। अगर तुम कोर की बात कर रहे हो तो कोडिंग तो मैटर ही नहीं करती। दो ही चीज होती है, कोर और नॉन कोर। मतलब यही होता है कि नॉन कोर का मतलब ही कोडिंग है, और कोर में एक दो कंपनी है, फिल्म और एक्जॉन कर लेती है थोड़ा थोड़ा। Like if that totally depends on your what profile they are hiring. Okay,
Yeah, when that Halliburton hires for something like related to data structure and something like that profile. So that is core company, but hiring from different profile. In that, they will definitely gonna consider coding. If you have the knowledge of the machine learning and all about that, and apart from that, you also have the knowledge of petroleum industry that they are working in. So they do not have to expense सेम मीन्स दे उनको मतलब दो लोगों के काम के लिए एक लोग मिल जाएगा, एक ऐसा बंदा जिसको पेट्रोलियम की भी नॉलेज और कोडिंग की भी नॉलेज है. तो फ्रॉम देयर दे गोना प्रेफर यू. Company like Halliburton did this year, not with us. They hire for different role. If we have the knowledge of the data structure and all these things, means machine learning basically they more focus. Means that totally depends on your profile. What profile? Coding. If you are gonna go to for non-core, that coding is very essential. Non-core you have only option like data analyst option or SDE profile option. So you have to learn compy coding, or apart from that other language that you can learn, that is very really beneficial. But in core, companies like ONGC don't ask for that. Companies like OIL don't ask for that. Any PSU don't ask for. In Kane, they generally don't ask for that. But if you gonna go there, it is good that you have some knowledge of Python. Basically, if you have some knowledge, that will gonna help you in the job, means in work that you do. Because I have talked some seniors about what they did in their internship. So they have done some project that required Python. So that's gonna help, because our industry is going through a transition phase. Because everything is gonna digitalize. We are doing in very old conventional way from a very long time. Now it's time to upgrade our way. So if you have the knowledge of Python, and that will be good. जैसे मैं वो कह रहा था कि नीड नहीं है अभी तक हमारे को कोडिंग की, तो अभी तक यूज नहीं हो रही है. जब नीड होगी तब कोडिंग ऐसा नहीं है कि सब कुछ डिजिटलाइज हो रहा है, सब कुछ वो हो रहा है, तो कोडिंग तो इनएविटेबल है कह सकते हो एक तरह से. तो अभी के लिए, अभी प्रेजेंट सिनेरियो में ज़्यादा तो PSUs हो गई, जो हो गई, वो अभी कोडिंग नहीं मांग रही. पर ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में जाके उन्हें कोडिंग की जरूरत हो, तो हमें उसके लिए तैयार रहना होगा कि सबको ही कोडिंग करनी पड़ सकती है. ऐसा भी हो सकता है. सब कुछ वो मतलब बेसिकली हमें नीड जो होगी कंपनी की, उसके हिसाब से हमें चेंज होना पड़ेगा. We got to know that we should have a basic knowledge about the coding skills too for the preparation of our future upcomings. So next question is our last question. The question is, what are the key takeaways from your interview experience, and any general tips and tricks that you would like to give to help us throughout the process? Like I said, confidence नंबर 1 पॉइंट तो वही है. अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो आप कर नहीं पाओगे. जैसे उन्होंने, मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरा जो इंटरव्यू चल रहा था, तो सब नर्वस होते हैं. सबसे पहले इंटरव्यू से पहले नर्वस होते हैं. बट उस इंटरव्यू में बेसिकली कुछ कह लो कि मैं उतना नहीं डरा हुआ था जितना मैं ONGC में डरा हुआ था. वो इम्पैक्ट करता है कि मैं उससे डरा हुआ नहीं था. मेरे को लगा था कि हाँ चलो ठीक है, इसमें नहीं होता है तो कोई बात नहीं, शायद आगे हो जाएगा. पर ONGC वॉज डिफरेंट, क्योंकि ONGC तो ONGC है. उसमें इसलिए डरा नहीं हुआ था, इसलिए मैं ज़्यादा नर्वस इतना नहीं था जितना मैं उसमें था. तो उसकी वजह से जैसे ही उन्होंने क्वेश्चंस पूछे, तो मैं पहले उन्होंने आसान क्वेश्चन से शुरुआत करी, जिससे कि मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट हो गया. उसके बाद उन्होंने जैसे क्वेश्चन पूछते गए, मैं और मतलब उसके बाद मैं बहुत आराम से, नर्वसनेस चली गई थी. वो पूछते जा रहे थे, मैं बताता जा रहा था, बस वो सेम सिस्टम चल रहा था. दूसरी बात है कि जैसे क्या कहते हैं, दूसरा क्या कहूँ मैं, एक नॉलेज तुम्हारी जो स्किल्स है वो इम्पोर्टेंट है. तुम्हें अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, तो एक तरह से जो होता है ना, बेसिक नॉलेज होती है, एक दो चीज होती है. एक तो वो क्वेश्चन पूछते हैं आउट ऑफ द सिलेबस कि तुम्हें उसका आंसर नहीं आता है. दूसरे होता है कि बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, अगर तुम्हें उसका आंसर नहीं आता तो तुम्हें अंदर से लगता है कि हाँ कुछ तो गड़बड़. उन्हें भी पता चल जाता है कि इंटरव्यूअर की शक्ल पे दिख जाता है कि दिस इज नॉट राइट, ये बंदा सही नहीं है. तो बेसिकली तुम्हें पहली चीज कॉन्फिडेंस, दूसरी चीज तुम्हें नॉलेज पूरी होनी चाहिए तुम्हारे सब्जेक्ट. लाइक यू आर रबिंग योर हैंड्स और लाइक दैट.
because your interview gonna go physical. You don't gonna have any virtual interview. So they gonna notice your each and every moment, what are you gonna do in the interview. And as Keshav said, confidence is very important. Apart from that, I don't think if you have little bit of subject knowledge, or you give every answer right, not every, but some of the answer, one or two may be wrong, they're gonna select you. If any other person outperforms you, that's the other chance. But if you gonna do everything right in a proper way, in calm way, and in very simple, like do not hesitate, बेस्ट सेल्फ में रहना अपने, and always put a smile on your face. Do not make your faces like that, not like that. Always put a smile on your face while giving an interview. Is it a knowledgeable person? अगर तुम्हारा पर्सन नॉलेजेबल है और तुम्हें उससे पता है कि हाँ कि तुम्हारा क्या कहते हैं, उस सब्जेक्ट के बारे में तुम्हें नॉलेज है, तो तुमसे और ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा. तो उस तुम्हें स्मार्ट भी बनना पड़ेगा, कि स्मार्टनेस दिखानी पड़ेगी कि हाँ तुम्हें पता चल जाएगा कि ये है कि तुम्हें इंटरव्यू के 2-3 मिनट में पता चल जाएगा कि इंटरव्यू को कितनी नॉलेज है. ठीक है, दोनों तरफ से चलता है. इंटरव्यू में पता चल जाता है कि इंटरव्यू कितनी नॉलेज है, और दूसरे को पता चल जाता है कि हाँ इसे तो बहुत नॉलेज है, इसे सब कुछ आता है, कि इससे थोड़ा बच के रहना पड़ेगा कि ज्यादा आगे चला गया तो ये भी और आगे चला जाएगा इंटरव्यू पूछते पूछते. तो दोनों स्मार्ट भी बनना है कि हाँ कि मेरे को यहाँ तक, मेरे को जितनी नॉलेज है उतनी लिमिटेड, मेरे को पता है कि लिमिटेड है मेरे पास नॉलेज, ज्यादा नहीं है. अगर मैंने बोल दिया मुझे EOR आता है, मेरे को नहीं आता EOR, मैंने बोल दिया तो वो तो और आगे चला जाएगा EOR में. तो मुझे वो स्मार्टनेस दिखानी पड़ेगी कि हाँ EOR उससे दूर रखना वो जरूरी है, कि स्मार्टनेस भी जरूरी है इंटरव्यू. There are two ways to drive an interview. A interview drive it or interviewer drive it. When an interviewer drives the interview, that's not good for you. When you drive the interview, that you can make interviewer what the question you want to ask, that you are asked. जो आप बताना चाहते हैं वही वो पूछे. ये आप अपने इंटरव्यू के इस तरीके से चलाते हैं तो आपका सिलेक्शन तो कोई नहीं रोक सकता. बट अगर वो जो पूछना चाहता है वो पूछ रहा है, तो आप वहां पे थोड़ा सतर्क हो जाइए कि हाँ इंटरव्यू सही नहीं जा रहा उस डायरेक्शन में. और तो ज्यादा कुछ खास वो एक तो हमारे पास दोनों एक्सपीरियंस है, ऑफलाइन का भी और ऑनलाइन इंटरव्यू का भी. ऑफलाइन का तो यही है कि आपके फेस टू फेस बैठा होता है वो, तो आपको ज्यादा पता चलता है उसके बारे में, और उससे आपको ज्यादा पता चलता है आपके बारे में. ऑनलाइन में इतना नहीं होता. ऑनलाइन में तो एक पैनल बैठा होता है, इतने आगे 5 लोग बैठे होते हैं, वो पूछते रहते हैं, ब्लर सी स्क्रीन होती है, कुछ ज्यादा दिखता नहीं है. तो मतलब फेसेस भी नहीं दिखते. हाँ, किसी के फेसेस भी ढंग से नहीं दिखते, कुछ नहीं पता चलता हमें उनके बारे में. वो तो हमारा इतनी बड़ी स्क्रीन पे फोटो देख रहे हो. अब वो ये तुम अगर लकी कहते हैं कि दोनों प्रोज एंड कॉन्स दोनों चीजों के हैं, ऑफलाइन के भी ऑनलाइन के भी हैं. तो बेसिकली मेरे को तो ज्यादातर जो मैंने तो क्या कहते हैं, अब सिलेक्शन मेरा उसमें हुआ था, ऑफलाइन में हुआ था, तो मेरे को ज्यादातर प्रो चीज जो लगती है वो ऑफलाइन लगी है, कि फेस टू फेस अगर बैठोगे तो तुम्हें ज्यादा अच्छी तरह पता चलेगा, तुम नर्वस कम होगे. ऑनलाइन में हाँ मैं बोला फेस टू फेस होगा, अपने आप को एक्सप्लेन अच्छे से कर पाओगे. एक्सप्लेन अच्छे से क्योंकि उसमें बता नहीं पाते कि अपन क्या बोलना चाह रहे हैं, अपनी फीलिंग्स क्या है, एक्सप्रेशंस क्या है अपने. मतलब तुम्हें चीज आती हुए भी तुम्हें ऑनलाइन में, मेरे साथ तो यही हुआ था, कोई काफी सारे क्वेश्चन ONGC में ऐसे थे कि जो आते भी थे उनको मैं बता नहीं पाया, तो मतलब या एक्सप्लेन नहीं कर पाया उनको सही तरीके से. पर ऑफलाइन में ऐसा नहीं हुआ, उनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए मतलब चीजों को. तो आई होप यू हैव ऑफलाइन इंटरव्यू, तो चीटिंग भी थोड़ी कम होगी. Thank you, sir. It has been such a wonderful session, and it's such a pleasure for us to talk to you all and learn these learnings, and it will surely help us in the future. And FIPI ITISM student chapter wishes you all the best for all your future endeavors. Thank you, sir. Thank you.